everyone, welcome back to my channel. My name is Ashmita and yes, I will be watching the breakdown video of Krishna's Little Bunty because I asked that in my Little Bunty reaction that do you want me to react to Rohan's breakdown video, and you guys told me yes, those were the maximum comments. So yeah, without dealing this any further, because this is like 22 minutes long video, so it's already a very long video, and of course because it's Krishna's song, so I understand. But I read a couple of comments that Rohan probably missed out some of the bars, which you guys, I mean, whatever he missed out, please write that down in the comments below if you can. There is no pressure. And yeah, let's watch this breakdown. हेलो व्हाट इज अप, मेरा नाम है रोहन कार्यपा एंड फाइनली द डिस सीजन इज ऑफिशियली ऑन। पहले हमें लगा कि सीन में सब सही हो गया है ना, 2.5 साल पहले कि भाई रफ्तार और एमी का जो पंगा था वो शांत हो चुका है, अब यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तब कृष्णा आउट ऑफ नोवेयर केम विद फ्री वर्स फ्री सीधा मेकओवर एंड बीफ सीजन को फिर से स्विच ऑन कर दिया। तब हमें एमी के रिप्लाई के लिए वेट करना पड़ा, बहुत टाइम तक हमने वेट किया, 2-2.5 साल निकल गए एंड उसके बाद लास्ट मंथ एमी फाइनली डिसाइडेड टू ड्रॉप हिज फर्स्ट डायरेक्ट डिस ट्रैक अगेंस्ट कृष्णा। उसके बाद सब लोगों ने अपनी मुंडी कृष्णा की तरफ मोड़ी और उन्हें आस भरी निगाहों से देखा और उनकी डिस का वेट किया। और जैसे ही हमारी उम्मीदें खत्म होने वाली थी वैसे ही कृष्णा ड्रॉप्ड हिज रिस्पॉन्स टू चुसम्बा कॉल्ड। I don't think किसी की उम्मीदें खत्म हुई थी, because I read a lot of speculation जहाँ पे बहुत आवाम ने ये यूनानिमस था कि नहीं, अभी वो नहीं करेगा कृष्णा immediately, because anyways album release was around the corner, so if Krishna will reply, he will reply after the release of the album, though it's only partly released, so but that sort of speculation came true. Lil Bunty. The name obviously gives a funny twist to the word buntai, bunty। साथ ही साथ कृष्णा एमीवे को थ्रू आउट द बीफ क्या कैरेक्टर देने वाले हैं इससे हमें वो भी पता चल गया, एंड द आंसर इज किड का कैरेक्टर उनको देने वाले हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो बेसिकली जैसे मुफाड़ को कृष्णा ने एक लड़की का कैरेक्टर दिया था एंड मुफाड़ ने कृष्णा को एक साइड किक का कैरेक्टर दिया था कि तू मेन इंसान नहीं है, तो किसी और के अंडर काम करता है एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसके आगे आने वाले डिस्ट्रैक्ट्स में मेनली मोस्ट ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड डिसेस वर रिवॉल्विंग अराउंड दिस कैरेक्टर। वैसे ही इस बार कृष्णा ने एमीवे बंटाई को बच्चे का कैरेक्टर दिया है मेनली, एंड दैट्स व्हाट लिल बंटी रिफर्स टू। देयर इज अ लॉट टू डिस्कस बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द लिरिक्स ब्रेकडाउन। Firstly, the track length of Lil Bunty is exactly the same as that of this. I read in the comments also where you guys told me कि exactly this was deliberately done, that Krishna made the track length exactly as same as Chosamba. Though I wanna, you know, I want you guys to do some more speculation. What do you guys think if the reply to Lil Bunty is going to, you know, happen in next couple of days? Or very soon, or do you think that no, first he's going to release, everybody is going to release his part B or side B of the album 8, या फिर बंटाई रिकॉर्ड से कोई और आके you know diss करेगा? What are your thoughts? That of Chusamba, and it doesn't seem like a coincidence because Chusamba का BPM tempo was 140 BPM and इस track का tempo was 110 BPM. Okay. The message could be कि हम दोनों ने same airtime लिया and see the difference in our skill levels. Secondly and more importantly, Flamboy has produced the beat of this track. If you've seen MV's growth, then you would know that Flamboy was one of his prime allies at one point in time. उसके बाद बीच में उन लोगों ने कुछ unfollow किया था, थोड़ी controversy हुई थी, but no one knew how serious that dispute was. Well, I think now the whole scene knows. Having said that, it is Krishna, so expect a few bars here and there, and let's jump right into the breakdown. So, in a way, I mean, no friends are permanent and no enemies are all permanent. Both statements are true, I guess. बता दें। Bunty, Daddy's home. Daddy's home. Intro is pretty simple, starts off with your regular schoolboy insults. Real talk, मैं हूँ realist in the scene. सुना बंटी की जली तो फिर ये है केरोसिन। Pretty simple. Real talk मतलब ये सच बात है, कृष्णा is the realest one in the scene. अगर बंटी यानी एमीवे की अब तक कृष्णा से जलती रही है तो this track would act like a kerosene, मतलब अगर अभी तक जल रही है तो ये और ज्यादा जलाएगा। ऑल्सो कमेंट में ये कोई नहीं बोलेगा कि रियल टॉक इज ऑल्सो शाउट आउट टू ज्योति सरदार पॉडकास्ट जिसमें कृष्णा फीचर हुए थे। Yes.
I have to का watch नाम that. I have because she is a YouTuber who specifically, I think, dedicated. The channel is dedicated to hip hop and music. It's basically a music reaction channel. But I know that she interviewed Krishna, and I bookmarked that interview. I was like कि मेरे को देखना है, पर वो bookmark करके कभी तक देखा नहीं है मैंने. It's quite a long interview, but yes, I'll watch. One day I'll watch. नाम रियल टॉक है ना? कोई भी ऐसी बात तो नहीं कर रहेगा हमारे बीच में से, है ना? मूविंग ऑन. ये है रियल रैप, पुल योर फकिंग हेयर बैक। 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी बेयर बैक। Pull your hair back is a saying that means someone is anxious and someone is tensed. ठीक है. कृष्णा सेज कि रियल रैप यानी मेरा रैप सुन के एमिवे टेंशन में आने वाले हैं. बेयर बैक मतलब होता है नंगे बदन करके कृष्णा ने उनकी ली थी. अब आई नो इसको कम चीप तरीके से कैसे बताया जाएगा हिंदी में मुझे तो नहीं पता. अगर आपको पता है बेयर बैक को कम चीप तरीके से हिंदी में कैसे बोला जाता है, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो. ऑल्सो 2.5 साल पहले ली थी मीन्स सीधा मेकओवर वाला टाइम, जब कृष्णा ने एमिवे पे 3 डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट्स निकाले थे. फ्री वर्स फीस्ट, that was sort of subliminal, sort of direct. उसके बाद सीधा makeover was a direct one and दम है. Also, when you hit it from the back, when you're screwing someone from the back, sometimes you also pull their hair back. So pull your hair back का वो एक मतलब भी हो सकता है. बना में बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला अब तो मरा तू. Not much to decode here. These are flow heavy bars. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एमिवे कृष्णा की ग्रोथ देखकर जेलस हो गए and ignoring the beef was a better decision for एमिवे. And now that एमिवे has jumped onto this beef, Krishna is going for the kill. कलम चला तो परंपरा में हरा दूं. परंपरा मतलब होता है ट्रेडिशन. कृष्णा सेज कि ये तो ये पुराना परंपरा ही tradition था वो है कि word. जब जब कृष्णा लिखते हैं, रैप लिखते हैं, वो हमेशा अपने ऑप्स को हराते Oh हैं. no, low battery. Okay. Okay, I'll cut the video here. I have to get my charger because it's like a 20-minute video. So, okay, my laptop is charging. So let us begin. नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ ट्रेडिशन. थोड़ा वो पीछे। हमेशा अपने ऑप्स को हराते हैं. इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ ट्रेडिशन. ये तो होता ही होता है. एमिवे करे स्विंग बोथ वेज जैसे तराजू. फर्स्ट सॉलिड बार ऑफ द ट्रैक. स्विंगिंग बोथ वेज मतलब एक ऐसा इंसान जो बायसेक्सुअल है. ही इज इंटरेस्टेड इन बोथ फीमेल एंड मेल. कृष्णा सेज कि एमिवे स्विंग्स बोथ द वेज एंड देन ही कंपेयर्स इट टू तराजू, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एनालॉग वेइंग स्केल, क्योंकि वो भी दोनों तरफ स्विंग हो सकता है ना. एक तरफ अगर वेट ज्यादा होगा तो उस तरफ स्विंग हो जाता है. एंड देन स्विंगिंग बोथ वेज अगेन जैसे मैंने आपको बताया बाइसेक्सुअल वाला रेफरेंस है. मूविंग ऑन. Okay. कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत Okay. ट्राई करा. You know, honestly, I thought this bar, okay, because I think Rohan has decoded it that way because Krishna particularly used the word femiware, but I actually thought in a way कि इसका एक थोड़ा और एक meaning हो सकता है, like he swings both ways in the sense that, you know, वो उसकी सोच परमानेंट नहीं है, लाइक वो दल बदलू टाइप्स है, या फिर आज वो बोलता है कि नहीं मैं इस साइड हूँ, एंड आज वो कुछ बोलता है और कल कुछ वो और बोलता है, लाइक डजंट स्टिक टू हिज ओन वर्ड्स. मे बी इन दैट वे ऑल्सो आई थॉट ही मेंट इट, बट ओके फाइन कूल. रेफरेंस है. मूविंग ऑन. कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत ट्राई करा मार नहीं पाए. Again, a simple bar with a hidden name drop in it. Krishna was silent for the last month or so, but इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार मान चुके थे. And then he says कि they tried to kill Krishna's career, but they couldn't. Also, Kara Marni in this bar is the name of a female artist. Kara Marni. बहुत ट्राई करा. यस, ये डाउट था मेरे को. इन द वीडियो आई आस्क्ड यू कि ये ऐसे मारनी ऐसे करके क्यों लिखा है. यस, ओके. मार नहीं पाए. जिन्होंने एमिवे के साथ कोलैब किया था. The track is called Don't Be the One, and the producer of the track is the man himself, Flamboy. फ्लैम्बॉय. तू है शुगर कर ले शुगर, तुम तो मार नहीं खा. तू है शुगर, a very classic you are gay bar of the diss track, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है. कृष्णा says that you are gay and इनको खुश होना चाहिए, एमिवे की टीम को खुश होना चाहिए that they are not getting beaten up. Let's move on to the next one. अरे बने ये कैसे पाब्लो जब इसको तो बार आई नहीं आया. डोंट नो, लाइक या दिस इज वेरी कॉमन इन हिप हॉप, बट ये मैंने पहले भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स में भी बोला. आई थिंक जब मैं कृष्णा वर्सेस मफाड़ वाला कवर कर रही थी, दैट आई मीन कॉलिंग समवन गे, I don't consider it as an insult because it's somebody's sexuality, and yeah, I mean at this point at 2022, I really wouldn't consider it as an insult. That's just my opinion.
नहीं आ रहे। चुसम्बा गाने का मोस्ट वेल रिटन बार was this. डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो। Emiway was obviously talking about Pablo Escobar and the story about him burning some money to keep his daughter warm in winter season. Krishna responds by saying कि ये कैसा पाब्लो है जब इसको बार नहीं आ रहे, मतलब जब वो बार्स या पंचलाइंस लिख नहीं पा रहा है. Also जब इसको बार is a word play on Pablo's surname Escobar. Yep. इसको बार नहीं आ रहे, Pablo Escobar. करा था मैंने खात्मा, मारो इसकी आत्मा। कृष्णा क्लेम्स दैट एमिवे को वो 2 साल पहले ही मार चुके हैं एंड जो अभी वो बीफ कर रहे हैं दैट विल एंड अप विद हिम किलिंग एमिवे सोल स्पिरिट एज वेल. बेसिकली एमिवे का कोई नामो निशान नहीं बचेगा इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. जीभ बाहर रहती इसकी आदत है चाटना. जीभ बाहर रहती. एमिवे यूजुअली स्टिक्स हिज टंग आउट बिकॉज ही इज यूज्ड टू लिकिंग एस. मतलब अब चाटने का मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना कि भाई बहुत ज्यादा चापलूसी करने की एमिवे को आदत है. ऑल्सो जीप कुड बी एंड आई एम सेइंग कुड बी अ वर्ड प्ले ऑन द कार कंपनी जीप. JEEP बिकॉज एमिवे के पास जो गाड़ी है रेड कलर की वो जीप कंपनी की. इट कुड बी. आई एम रियली नॉट श्योर. हुई इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना, आके मुझे गांड दी और मैं ना कोई महात्मा. जब हाइप खत्म हो गई तो एमिवे ने कृष्णा को गांड दी. सो हियर कृष्णा इज इक्वेटिंग बीफिंग विद हिम टू गांड दे देना. मतलब कोई मुझसे बीफ करेगा तो भाई इसका मतलब है कि वो बंदा सामने से मेरे को दे रहा है. मैं ना कोई महात्मा लाइन इज टू एस्टैब्लिश द वर्ड प्ले. गांधी महात्मा गांधी सरनेम और गांधी ये वर्ड प्ले एस्टैब्लिश करने के लिए महात्मा वाला रेफरेंस देना जरूरी था. मूविंग ऑन. छोटे कम आउट टू प्ले, हर रात बोलता होगा अपने लंड को. दिस इज बाय फार द फनीस्ट बार of the track, hands down. Chote come out to play was the phrase used by Emiway in the intro of Chusamba. Krishna absolutely flips it by saying कि Emiway यही चीज हर रात अपने पीनिस को देखकर बोलता है. Two hidden insults here. एक तो छोटा है, दूसरा erectile dysfunction की come out to play बोलना पड़ रहा है. शॉट देने लगा हो गए सारे शॉट फेल. करा इसे डाउन पहले राउंड में ही बहुत तेज. करा इसे डाउन पहले राउंड में मींस कृष्णा ने एमिवे को नॉकआउट कर दिया और नॉकआउट करके उनको गिरा दिया इन द वेरी फर्स्ट राउंड. अगेन रेफरिंग टू फर्स्टली हाउ इजी एन ओपोनेंट एमिवे इज एंड देन रेफरिंग टू द सीधा मेकओवर टाइम कि मैंने उसी टाइम पहले राउंड में ही एमिवे को हरा दिया था. इसमें सिर्फ लौड़े ये लौड़े वो, बस लौड़े की कहानियां बताएं इन कॉकटेल्स. Okay, so the major complaint that people had with Chusamba was that there were a lot of dick mentions in throughout the track, है ना. Everybody is bulla, everybody is learned. ऐसे कुछ लोगों ने बोला था कि इस टाइप का गाना है. Krishna addresses that and says कि ये लौड़े की कहानियां सुना रहे हैं. But he's not interested in cocktails. Now, cocktail is a category of alcoholic drinks जिसमें alcoholic drinks को multiple alcoholic drinks को mix किया जाता है, alcoholic drink को किसी juice के साथ mix किया जाता है, etc. etc. But also it is a word play on cocktail, TALE वाला tail यानी कहानियां. लौड़े की कहानियां, cocktails. बीफ करना है मम्मी से पूछ. Now this line is referring to Emiway's track मालिक जिसमें एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी मम्मी ने कहा है कि उन्हें बीफ नहीं करना चाहिए. ना मेरे मम्मी ने कहा है मुझे बीफ नहीं करना है. कृष्णा taunts that and says कि बीफ करने से पहले एमिवे को मम्मी से परमिशन ले लेनी चाहिए, मम्मी से पूछ लेना चाहिए. चला डालूंगा तुझे जैसे यहाँ गर्मी में धूप. एमिवे ने कृष्णा को जलाने की बात करी थी अपने ट्रैक में. कृष्णा says something similar here. He says कि वो एमिवे को जलाएंगे जैसे गर्मी में धूप. Now दिल्ली के समर्स काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं और रूथलेस होते हैं. It's very brutal. दिल्ली के समर में अगर आप बाहर जाओगे तो आपको सनबर्न होने का खतरा रहता है. सनबर्न बेहोश हो जाएंगे. Like it's insanely hot, man. सनबर्न बेसिकली जला देंगे जैसे गर्मी में धूप. लेता मैं इनकी जब बोलता है पिंकी तो मुझे याद आती इसकी बंदी की. Krishna again flips the insult back successfully. Mufad gave this name Pinky to Krishna during his beef and Emiway used it in his track Chusamba as well to insult Krishna. Krishna says कि whenever Emiway said Pinky, it reminded Krishna of Emiway's girlfriend's private part. Now Krishna doesn't actually say it out loud. Rather he used this technique called the mind rhyme. जिसमें प्रीवियस राइमिंग वर्ड्स और प्रेजेंट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आपका माइंड खुद एक वर्ड इमेजिन कर लेता है विदाउट द रैपर इवन सेइंग दिस. ऑल्सो रिमेंबर जो बच्चे का कैरेक्टर कृष्णा ने एमिवे बंटाई को दिया था, दिस बार हैड इंकी पिंकी राइम स्कीम दैट अगेन गोज विद द थीम ऑफ लिल बंटी. Okay.
Wow. ओ ले ले बंटी है सैड अब, सब जानते हैं बंटी है बैकअप। अगेन कंटिन्यूज द चाइल्ड कैरेक्टर, जैसे हम बच्चों को तोतला के बात करते हैं वैसे ही Right. कृष्णा स्टार्ट्स द बार विद ओलेले एंड देन द फॉलोइंग बार इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एमिवे इज सैड एंड एवरीवन नोज दैट एमिवे हैज नो स्किल्स टू शो. जब लिटाऊं तुझे नीचे मैं लूं मैं तेरी पीछे से is the only time I need backup. Another decent bar from the track. Fall off में हमने देखा था उन्होंने एक रेफरेंस यूज किया था कि 6 बंदे उनका लेवल नहीं छू पाए साइफर में. Also in Free Verse Feast he had mentioned that if MV has to fight against Krishna he would need his friends, he would need your guys. कृष्णा सेज कि उन्हें बैकअप या सपोर्ट, बैकअप यानी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती लड़ाई में, वो अकेले ही काफी है. एंड द ओनली टाइम ही नीड्स अ बैकअप इज व्हेन ही इज स्क्रूइंग एमिवे फ्रॉम बिहाइंड. तब पिछवाड़ा से ऊपर करना पड़ता है ना, बैकअप पिछवाड़ा ऊपर करना एंड That was. सपोर्ट. मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर. Yet again a sexual bar, but this time Krishna mocks Emiwe in his own flow, जो Emiwe ने अपने ट्रैक जंप कर में यूज किया था. इनफैक्ट जंप कर के कोरस में यूज किया था. मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. उस गाने का Oh, producer so कौन है? so that's Jumkar. Oh, okay. So that was a mockery of his own song. Ah. Oh, okay. कर सकते हो. Yes, you're right, Flamboy. तो कृष्णा twists the lyrics and says कि वो और उनके दोस्त एमिवे को पूरा दिन हंटर से मारते हैं. पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोटे जमकर, चल छोटे जमकर आके मेरे लंड पर. Now here Krishna completes the hook in his own style. The original hook ends with चल छोटे जंप कर, but Krishna extends it a little bit with चल छोटे जंप कर आके मेरे एल पर. Right. बंद कर छोटे नाटक कम कर, लूंगा तेरी तो होगा तू आउट ऑफ संपर्क. Now इस बार में out of संपर्क यूज हुआ. Out of संपर्क basically means out of reach. Right. And it could also be a reference to how Emiwe's reach has seen a downward graph. And also out of Has it? संपर्क is an Emiwe. Has it seen a downward graph? Okay. I mean, I haven't checked the numbers of 8, like the streams and whatever are happening, because that's a very, for me, I think I enjoyed 8 songs more than Malum Hai Na, because that's my kind of, those songs are my kind of songs. But yes, it's not like typical Emiwe tracks. So I had said that, and also in my album listening, that couple of songs there are going to be a complete hit or a miss for Emiwe's audience themselves, because people who are very used to listening to a particular sound of that guy probably will not jam with it. So maybe that's the case which is happening now. Okay. Emiwe Bantai song produced by, yes you're right, the man Flamboy. Flamboy. Do we see a pattern here? Moving on. हल्की टोन में मेरी ही लाइनें बोल के इसे लगा ये कोल्ड है नकलची होते बंदर. Emiwe used a lot of Krishna's lyrics and Krishna's flow to mock him in his track Chusamba. मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से. Krishna says कि Emiwe को लगा कि ऐसा करने से he's insulting Krishna in a very nice way. Rather, he looked like a monkey because monkeys have this tendency of copying. Also, नकलची बंदर. Divine's diss track to Emiwe was called Chabi Wala Bandar. So it could be a callback to that as well. Okay. मरे पड़े जो करे आके यहाँ रंबल. Royal Rumble was Emiwe's track. Also, Okay. जब animals आवाज निकालते हैं, अपनी भारी भरकम आवाज निकालते हैं, उसको rumble बोला Rumbling. जाता है. तो इस Rumbling बार का sound. मतलब है कि आज से पहले कृष्णा के सामने जिसने भी आवाज उठाई है वो अभी मरे पड़े हैं. कृष्णा के सामने आवाज उठाने वाला अभी तक जिंदा नहीं है. सिल्वर बैक में रैप भले या जंगल. कृष्णा कॉल्स हिमसेल्फ अ सिल्वरबैक, मतलब अ गोरिल्ला, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग जानवर होता है. कृष्णा ने इससे पहले एमिवे को बंदर बोला था लास्ट बार में, एंड देन हियर ही इज एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज अ गोरिल्ला, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मच स्ट्रॉन्गर स्पीशी है एज कंपेयर्ड टू अ बंदर. Right. ही सेज कि अगर रैप सीन जंगल है तो कृष्णा डोमिनेट्स दैट बाय बीइंग अ सिल्वरबैक. Okay. इज वन ऑफ द बेस्ट. हिलाता रहे बेटा ओढ़ के तू कंबल, स्किन लाइट माइंड से मैं टाकूं चंबल. हिलाता रहे ओढ़ के तू कंबल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, Yes. कीप मास्टरबेटिंग. स्किन लाइट मतलब
कृष्णा का जो स्किन कम्प्लेक्शन है वो गोरा है, कृष्णा गोरे हैं, पर उनका माइंड डार्क है, यानी उनका माइंड शैतानी है थोड़ा। ऑल्सो डार्क हूँ इज अ वर्ड प्ले ऑन डाकू, और इंडिया में चंबल नाम का एक एरिया है, वहाँ के डाकू बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कहाँ के फॉरेस्ट में? known to have a lot of डाकूज in and around. नाइस, आई लाइक दिस 2 पॉइंट्स। रैप पड़े तुझे हाँ, नो फैक्ट जब अटैक करे मुझे हाँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एमवे के लास्ट डिस में कोई भी फैक्ट्स नहीं थे, इट वाज जस्ट प्योर इंसल्ट्स। 8 साल हो गए रैप करे तुझे, अभी भी कोई मानता नहीं रैप करे तुझे हाँ। हियर कृष्णा सेज कि 8 साल तक रैप करने के बाद भी nobody considers एमिवे एज अ रैपर, and a lot of people say कि एमिवे is more of a YouTuber than an artist. So this is a taunt at Do that. they say कोई भी a YouTuber? Why a YouTuber? I want to know why. Why Rohan said that? Why a YouTuber? सुनेगा अब तेरा ये टेस्ट तो लगेगा desperate for dollar का टिक। चुसम्बा में there were a lot of dick references, Yes. जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सो कृष्णा बोलते हैं कि जो भी चुसम्बा सुनेगा उनको ऐसा लगेगा कि एमिवे इज रियली इंटरेस्टेड एंड ऑब्सेस्ड विद कृष्णास डिक, बिकॉज उन्होंने कृष्णा के डिक के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया है। ये गधे की झूठ बोल रहा अब उन्हें धूप, तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स। एमिवे इन हिज लास्ट डिस कॉल्ड हिमसेल्फ धूप। सो कृष्णा सेज कि उनका रैप यहाँ पे सोलर एक्लिप्स लेकर I really like सोलर this एक्लिप्स part. के टाइम पे बेसिकली सन छुप जाता है एंड धूप नहीं आती। Correct. Also, very importantly, in Mahabharat, Jayadratha was looking to hide till the sunset, but Lord Krishna के solar eclipse की वजह से he thought कि sunset already हो चुका है and he came out, resulting in him getting killed. 3 point देना थोड़ी रोहन। लंबी स्टोरी, अगर टाइम मिले तो गूगल पे पढ़ लेना विस्तार में, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो। मूविंग ऑन। अब ना तू पहाड़ या घाटी है तो मैं पहाड़ हूँ रेफरेंस वाज यूज्ड बाय एमिवे इन दिस ट्रैक नेम्ड क्यों जाने दे, चढ़ना मुश्किल है मुझ पे हाँ जैसे एवरेस्ट का पहाड़ हूँ मैं। एंड घाटी पहाड़ को काट के इरोजन के थ्रू बनती है। ऑल्सो एमिवे इज फ्रॉम एंटॉप हिल पहाड़ी, कृष्णा इज फ्रॉम कश्मीर वैली घाटी, समझे? Moving on. ये अनपढ़ गवार रानछनिया के नाल से आगे ना इनकी तो बढ़ती है सोच। Pretty simple bar. एमिवे used a lot of these slurs in his track and Krishna says कि एमिवे की सोच वहीं तक है, यहाँ ये slurs use करने तक ही एमिवे की सोच है। घाव तू फिलहाल ले ले बैंडेज बैकस्टेज इफ आई गेट सन माइक जैक्सन रैम्पेज। कृष्णा एड्रेसेस एमिवे एज हिज बेटा एंड सेज कि अगर वो अपने बेटे से कभी बैक स्टेज में मिले तो ही माइट जैक हिज सन, मतलब वो अपने बेटे को रॉब करेंगे एंड देन ही एंड्स द बार विथ रैम्पेज। जैक्सन रैम्पेज इज एन एमएमए फाइटर। जैक सन यानी वही मुझे लगा वो किसी का नाम था। एंड जैक्सन द नेम। करेक्ट। दुकाई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से, तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे। Oh, that was a Chen K reference. Okay. OnlyFans is a website जहाँ पे आप पैसे देकर अपने फेवरेट क्रिएटर को सब्सक्राइब करते हो एंड मोस्टली द वेबसाइट रिवॉल्व्स अराउंड एंड इज नोन फॉर अडल्ट लाइव स्ट्रीम, समझ रहे Correct. हो? तो कृष्णा सेज कि समझ by the रहे हैं। end of this beef एमिवेज ओनली फैन बेस will be on OnlyFans. Femi whip, pussy whip, that's a fact done. Your bitch probably fuck you with a strap on. Pussy whipped is a guy who likes being dominated by women in bed. Krishna Okay. says कि Emiwe is like that. Emiwe is the submissive one in the relationship. Strap on is nakli dick, nakli dildo that girls use to fuck their submissive male partners. Krishna says that Emiwe ये तो gets BDSM fucked terms by मेरे को his पता नहीं है। partner, Okay. and his partner obviously wears a नया strap. ज्ञान। All I need is one थोड़ा verse. लास्ट में क्या बोला Partner उसने? and male partners. Krishna says that Emiwe gets fucked by his partner and his partner obviously wears a strap on. All I need is one verse to put you in a hearse, and I don't even have to put my cap on. Krishna will need one verse to kill Emiwe is what he is trying to say here. And Krishna says कि उन्हें अपनी beef cap पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Now if you don't know कि beef cap की history क्या है, तो basically this cap चलो, ये तो has मेरे a को पता है। reputation, a very popular reputation amongst the hip hop audience. People believe कि Krishna enters the brutal mode when he wears that cap. He wore that cap in Seedha Makeover and he wore that cap in Maharan. तो Krishna says that इस बीफ में उन्हें एमिवे को हराने के लिए टोपी पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Basically showing कि it is a cake walk for him.
कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो Death Row Records काफी infamous hip hop label था. Suge Knight, the CEO of label, was considered very dangerous. There are Okay. stories of him hanging Vanilla Ice off the balcony. Eazy-E Biggie को मारने की conspiracy theories में भी उनका नाम आता है. Krishna says कि कलमकार has now become as dangerous as Death Row because of him. Oh. इस बारी इसकी मौत टल ना पाए जैसे जेथ रो This time Krishna will not wait before killing Emiway. मौत नहीं टलेगी. Also, Jethro here means Jethro Tull, the rock band. Okay. मौत ये वो टल, Jethro वाला Jethro बार मेरे को Tull, पता नहीं the था. band. Like I didn't know who टलना Jethro का is. मतलब होता है to get delayed. Correct. एंडिंग द साइलेंस विद वायलेंस ऑफ वायलेंस Ending the silence. Now Krishna has replied after 45 days. So he's ending his silence with violence of violence. So now in his last diss track, Ma Kasam, Krishna compared himself to the musician Bach. तूने you ain't Beethoven but I'm meant to be Bach. You're elementary, I'm dropping penitentiary bars. Dude, And this Bach song. used to play violin. But Krishna in music would play violin, the instrument of violence. Violence. Yani hinsa. Hinsa wali dhun is what Emiway is calling this track. Now watch a dead rapper get fucked, no necro. Being a necrophile means a person who likes having sex with dead body. Krishna calls Emiway a dead rapper because his reach has gone down, so that makes him dead rapper. And Krishna says that he's going to fuck that dead rapper. But he's not a necrophile because वो असलियत में नहीं मरे हुए हैं. He means statistically dead rapper. कुल्फा क्या करेगी कुल्फी है खुद बंटी तो लगता है बुद्धि से दुष्ट Again, a regular you are gay bar. Let's move on. ऑटोमेटिक था ब्रश ऑटोमेटिक अब टांगे जब दिखता है डॉलर तो खुलती है खुद Automatic Brush is a reference from Emiway's track सीधा टेक ओवर जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी और ऑटोमेटिक ब्रश का जिक्र किया था. ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक मेरा ब्रश कृष्णा सेज कि पहले ब्रश ऑटोमेटिक था, अब एमिवे की टांगे ऑटोमेटिक है बिकॉज वो जब भी कृष्णा को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली खुलने लग जाती है, इंसिनुएटिंग द फैक्ट दैट एमिवे लाइक्स गेटिंग फक्ड बाय कृष्णा. वेरी सिंपल बट अ वेरी क्रिएटिव वे टू से दैट. Yeah. मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से चला मेरा गाना तेरी बदनामी से एमिवे ने लास्ट टाइम बोला था कि कृष्णा बिकेम पॉपुलर बिकॉज उन्होंने एमिवे का नाम यूज किया. कृष्णा हियर गिव्स अ काउंटर बाय सेइंग दैट ही बिकेम पॉपुलर नॉट बिकॉज ही यूज्ड एमिवेज नेम. He became popular because Emiway was being defamed and people liked seeing that happen. So that's pretty much it for the breakdown and the final score is... Now overall if you ask me कि मुझे ये track कैसा लगा, I would say okayish as compared to Krishna's previous diss tracks. It is obviously nowhere close to, let's say, an untitled Makasam or Maharani. Makasam However, तो if I यार have to compare it to Chusamba, right now Krishna seems far ahead in this beef. What are your opinions? Make sure you drop down in the comments I- below. अगर आपको Sure. इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है Okay, I'll stop this. So good video by Rohan, and yeah, I mean I say this in my own reaction also that this was not even like his brutality level. Like for me, this is intermediate brutality what he showed on this track, because I mean, we have seen Krishna wo like full on, like, and then he sort of, like I said, he sort of justifies na, ye to teaser tha, ye to teaser hai, and all of that. So, matlab, I wouldn't, like, Makasam, the standard that he set with Makasam, I don't know. Like, I know Krishna can only break it, but depends on the need. Like, you don't need a song like Makasam at this point of the beef. Now, we'll see what the next song is, and then, yeah, like, you know, he said the beef season have officially started. So, but a good breakdown, and now I have understood the references which I was like a little bit clueless about, because जहाँ पे वो name drops होते हैं ना, I don't know those names. I might know a couple of names, but like वो Death Row and all of that, those are the names. Jethro वाला name. So that's where I miss out on understanding the bars at that moment. But yes, that's why I need a breakdown, or otherwise I need like your help to understand कि हाँ ये इसके reference में था. So yes, that was it, guys. That was the reaction, and you know, जो मैंने thoughts बोले अपने pause करके. I want to know your thoughts. How did you like this breakdown? Whatever bars Rohan has missed, you can let me know in the comments. And yup, with that, I will end this video, and I will see you soon now on my next one. Bye bye.